Good morning, everyone. Today we are going to study the Geography third chapter of Class 8 Natural Vegetation and Wildlife. In last class, we see the natural vegetation of India and world. Now, in this class, we are going to study about the wildlife. Wildlife refer to the undomesticated animal of a region, mammals, bird, reptiles, amphibian, fish, and insect. Importance of wildlife. Wildlife too play a role in the balance of the ecosystem. Each species interact with its environment in different ways. All organisms in an ecosystem are dependent on each other. The extinction or proliferation of one species can have far-reaching affecting on its ecosystem. For example, spider, insect and flies, etc. Insects are the source of important products like honey, wax, dye, and silk. In addition to pollination, flower insects also act as decomposer and help in increasing creating the nutrient-rich topsoil. Birds feed on worms and by doing so protect crop from pests. Vulture and crows act as scavengers by feeding on the dead. Wildlife help promote tourism and generate income for countries. The depletion of the depletion of the depletion and the degradation of wildlife is a major problem throughout the world. Certain natural and human-made factors are responsible for this. Loss of natural habitat. Change in the climatic condition and human activities such as overgrazing, urban expansion, agriculture, mining, and constructional activities and deforestation have led to the destruction of the natural habitat of animals, causing them to migrate elsewhere. Excessive hunting and poaching. Animals like the tiger, lion, elephant, rhinos, black buck, crocodile, ostrich, and peacock are poached for their hide, skin, tusk, horn, and feathered feathers. As a result, several species have become endangered and many have even become extinct. Natural factor: forest fire, earthquake, tsunami, landslide, and failure of the monsoon pose a threat to wildlife. These are the major factors and threats and problems of the wildlife. Now, conservation of forest and wildlife. Recognizing the importance of conserving our natural vegetation and wildlife, countries around the world have taken various initiatives towards this end. Natural park, wildlife sanctuaries, and biosphere reserve have been set up throughout the world. An international agreement between government known as CITES has been established. It seeks to ensure that international trade in wild animal and plant species does not threaten their survival, and it was prohibited around the world of any kind of trade of related of animal. The government of India has declared many regions as protected area of different type such as national park, wildlife reserves, biosphere reserves, and sanctuaries. Various projects have also been launched, such as Project Tiger, Project Elephant, and Project Rhino. In this forest, right to activity like grazing and hunting are
restricted. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जिसको कि हम कह सकते हैं कि उन सभी जानवरों को जिनका मानवीयकरण या डोमेस्टिकरण नहीं किया जा सका है, उन सभी को हम लोग इसमें रखते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग या महत्व हैं। ये हमारे इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और उसको नियंत्रित भी रखते हैं। सारे जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम में जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई भी इसमें से एक स्पीसीज अगर वहाँ से इस जगह से गायब हो जाता है तो उसका बड़ा बुरा प्रभाव जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है, जैसे कि स्पाइडर, इंसेक्ट एंड फ्लाइज एक्सेट्रा। इंसेक्ट और जो है ये सभी बहुत महत्वपूर्ण सोर्सेस होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंसेक्ट के द्वारा हमें मधु, वैक्स, डाई और सिल्क वगैरह मिलता है। और यहाँ तक अगर पॉलिनेशन में कहेंगे तो फ्लावर्स, इंसेक्ट और ये सभी जो है डिकम्पोजर के रूप में काम भी करते हैं। साथ ही साथ पेड़ पौधों के लिए ये न्यूट्रिशन रिच टॉप सॉइल का भी निर्माण करते हैं। साथ ही साथ बर्ड जो है वो वर्म, कीड़ों को खाते हैं फसलों में से चुनकर, जिससे कि हमारे फसल बच जाते हैं खराब होने से। वहीं पे वल्चर्स जो हैं और या क्राउ, ये दोनों जो है स्कैवेंजर होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को ये खा जाते हैं। वाइल्ड लाइफ हेल्प प्रमोट टूरिज्म एंड जनरेट इनकम ऑल्सो। जंगल या फिर इनके अंतर्गत जो ह्रास होते जा रहा है जंगल जीव का, इसका प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक आवास का घटते जाना। जैसे जैसे पर्यावरण का जलवायु जो परिवर्तन होता जा रहा है विश्व का, उसके चलते जो है, और साथ ही साथ कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे कि पशुचारण या चारागाह का कम होना, शहरी क्षेत्र का विकास, कृषि क्षेत्र का विकास, माइनिंग और कई तरह के क्रियाकलाप जो कि मानव के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें कि वनों को काटा जाता है, वो प्राकृतिक आवास को बिगाड़ते हैं, खराब करते हैं, जिससे चलते जो है वहाँ के जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो मजबूर हो जाते हैं वहाँ से माइग्रेट करने के लिए। हंटिंग एंड पॉचिंग जो है खास करके पुराने समय से लेकर काफ़ी जगह पे आज भी ये जो है जानवरों का, जैसे कि शेर, बाघ, हाथी, राइनोस, ब्लैक बग, हिरन, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच और पीकॉक का शिकार किया जाता है, खास करके उनके हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, टस्क के लिए, हॉर्न के लिए और फेदर्स के लिए, जिसका परिणाम यह निकलता है कि ये सभी जानवर जो हैं आज खतरे के निशान पे हैं। अगर इसको नहीं रोका गया तो हो सके तो ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से गायब भी हो जाएंगे। नेचुरल फैक्टर्स, कुछ प्राकृतिक कारण भी है जो कि इस पे थ्रेटन है। उसमें से है जंगल का आग, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, फेलियर ऑफ मानसून, पोस्ट थ्रेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें वन जीव और वनों को बचाने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज विश्व स्तर पे सभी देशों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी को सेटअप करना है पूरा विश्व के अंतर्गत। और एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी साइन की गई है विभिन्न सरकारों के बीच में कि सभी सरकारें जो हैं एक दूसरे में जब व्यापार करती हैं तो ना ही वो किसी प्रकार के जानवरों से जो उत्पाद हैं, जैसे कि स्किन, उनकी हड्डियाँ, उनके सींग, इन सब का व्यापार जो है वैश्विक स्तर पर नहीं किया जा सकता है। इसको कई खास तरह के जानवरों के व्यापार पे भी रोक लगाया गया है, और यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के सभी पे पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि जानवरों को वो व्यापार में शामिल नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से कई प्रयास किए गए हैं। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र घोषित किए गए हैं कि वो क्या हैं, तो वो संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, बायोस्फीयर सेंचुरीज, और कई प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं जंगल जीव को बचाने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो। इन सभी के द्वारा बाद भी इन सभी जंगलों में जो नियम लगाए गए हैं, इसमें क्या किया गया है कि किसी भी प्रकार का
वनों से प्राप्त किए जाने वाले मानवीय क्रियाकलापों को बंद कर दिया गया है।